हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। सो लास्ट टाइम हमने देखा था इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने कवर किया था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल टाइप, डीएसएल आर्किटेक्चर, केबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल इंटरनेट, फाइबर इंटरनेट एंड सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। ओके, सो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंटरनेट एंड द डीएनएस, जिसमें मैं मेनली फोकस करूंगा what is the internet, what is the basic services or the protocol are going to use on the internet, what is DNS and the DNS communication process. Okay, so सबसे पहले tell me what is the internet. So internet is a global network that have the ability to connect different types of networks to each other and make sure the information and the resources are available to the end user. So what kind of networks do we have? We have let's say government network, we have school or the college network, we have universities network, we have private business companies network that is connected through a company who's taking a responsibility to connect different types of networks to each other, and this type of company is known as the ISP, or you can call the internet service provider. So this ISP have the ability to connect these different types of networks to each other by using uh, by using a protocol, or you can call a language that have the ability to communicate with each other, and this communication language, this protocol is known as the internet protocol. Okay, so in short क्या है, in short internet जो है, this is a network of networks that have the ability to connect multiple networks to each other. सो वो गवर्नमेंट नेटवर्क हो सकते हैं, स्कूल या फिर कॉलेज नेटवर्क हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ या फिर आपके प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क्स हो सकते हैं. सो इन सभी नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दे नीड टू हैव अ प्रोटोकॉल, दे नीड टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाय दिस ऑल द डिफरेंट नेटवर्क्स, एंड दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज द आईपी, द इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू सेंड अ लेटर टू माय फ्रेंड. अब यहाँ पे देखो, मुझे एक लेटर अपने फ्रेंड को भेजना है. तो लेटर अगर भेजना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या होना चाहिए, उस फ्रेंड का एड्रेस होना चाहिए. अब वो जो एड्रेस है, मेक श्योर दिस एड्रेस हैज़ टू बी यूनिक, क्योंकि अगर मेरा फ्रेंड एक लोकेशन पे रह रहा है और उसका एड्रेस जो है वो XYZ है, और XYZ के जैसे ही और भी मल्टीपल XYZ होंगे, तो मेलमैन जो पोस्टमैन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली वो लेटर जो है मैं किसको हैंड ओवर को. इसी तरीके से लेट्स से आई वांट टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ पर्टिकुलर सर्वर. So it need to have an address, and make sure this address has to be unique address on all around the world. Okay, so that the unique identification of the address is known as the IP address. That unique identification of the address is known as the IP address. मतलब अगर मुझे कोई पैकेट भेजना है किसी एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए, so make sure that a particular server, let's say particular server name is let's say abc.com, और दिस पर्टिकुलर नेम सर्वर इज ABC, और इस ABC सर्वर का जो IP एड्रेस है वो है let's say 1.1.1.1. सो मेक श्योर दिस IP एड्रेस इज अ यूनिक IP एड्रेस on all around the world. Okay, so if I want to send a request to a google.com, so this google.com has a unique address, so the request goes to the google.com or Google server, not somebody else. मतलब अगर google.com को कोई मुझे पैकेट भेजना है, तो google.com का जो एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए. उससे क्या हो जाएगा, वो जो पैकेट है वो डायरेक्टली गूगल सर्वर के पास ही जाएगा, दूसरे किसी सर्वर के पास नहीं जाएगा. सो IP एड्रेस इट्स अ 32-bit which is divided into 4 octets, 1 2 3 4. Each octet is separated with the dot. Each octet have 8 bits value, and these IP addresses are written into decimal number. For example, it look like this 200.1.1.5. This is your IP address, and this IP address, make sure this IP address has to be unique. Okay, so all the devices on the internet have their own unique IP addresses. Now tell me, how do I make sure these IP addresses is unique addresses from all around the world? ओके तो मुझे कैसे पता चलेगा जो IP एड्रेस मुझे असाइन हुआ है या जो IP एड्रेस जो मेरे पास है वो यूनिक एड्रेस है. मतलब गूगल के पास जो एड्रेस है जैसे 2.2.2 है, ABC के पास 1.1.1 है, मेरे कंपनी सर्वर के पास है 200.1.1.5. मुझे कैसे पता चलेगा
कि पूरी दुनिया में जो आईपी एड्रेस मुझे असाइन हुआ है वो यूनिक है या नहीं. Okay, so all the IP addresses on the internet that is controlled by a central authority, the company which is known as the IANA. IANA stand for Internet Address Number Authority. Okay, so this is the company जो सभी आपके जितने भी IP addresses हैं वो सभी IP addresses को क्या करती है, कंट्रोल करते हैं एंड मेक श्योर दैट IP addresses won't be duplicated और दिस IP addresses जो है वो आपस में कभी कन्फ्लिक्ट ना हो. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, इससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. ओके, सो द आयना कंपनी जो है वो डायरेक्टली आईपी एड्रेस जो है वो आपके एंड यूजर को असाइन नहीं करते. ओके, सो दे असाइन दिस एड्रेसेस टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जो जो आपकी कंपनी के पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनको वो क्या करती है, एड्रेसेस जो है वो असाइन करती है. जैसे आयना क्या करेगी, जैसे आयना के पास दो ISPs हैं, ISP1 एंड ISP2. ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ. सो यहाँ पे देखते हैं IANA इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जो कि डायरेक्टली कभी भी आपके एंड यूजर को आईपी एड्रेस असाइन नहीं करती. ही गिव्स द आईपी एड्रेसेस टुवर्ड्स द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे ISP1 है और ISP2 है. सो ISP1 को जो आईपी एड्रेस मिला है वो है जैसे 10.0.0.0 और ISP2 को आईपी एड्रेस जो है वो है 20.0.0.0. So IANA make sure that the IP addresses on a IP address that is assigned by the different ISP is unique. मतलब IANA जो IP addresses assign कर रहे हैं आपके ISP1 और ISP2 को, they make sure it's a unique IP addresses और unique network IP addresses. Okay, जैसे ही ISP को अपने IP एड्रेसेस जो है वो असाइन किए जाते हैं, ISP क्या करेगा, फिर ISP उन नेटवर्क्स को, उन IP एड्रेसेस को असाइन करेगा अपने एंड यूजर्स को. जैसे पे ISP1 के पास कंपनी A है तो वो कंपनी A को एड्रेस असाइन करेगा जैसे 10.1.1.1. कंपनी B है, कंपनी B को एड्रेस असाइन करेगा जैसे 10.1.1.2. ISP2 को जो IP एड्रेस मिला है वो जैसे है आपके 20.0.0.0, तो वो ISP2 क्या करेगा, जैसे एंड यूज़र जो है, एंड यूज़र 1 उसको एड्रेस असाइन करेगा जैसे 20.0.0.1. एंड यूज़र 2 को एड्रेस असाइन कर रहा है यहाँ पे 20.0.0.2. अब क्या होगा, अब ये दो ISPs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आईपी एड्रेसेस असाइन किए उन्होंने अपनी कंपनी A, कंपनी B या फिर एंड यूजर्स को, make sure that IP addresses is unique IP addresses on all around the world. Okay, so यहाँ तक क्लियर हुआ. आई होप आपको IP एड्रेस के बारे में हम डिटेल में आगे देखने वाले कि IP एड्रेस क्या है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम IP एड्रेस सेशन में देखने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट. Now, what kind of services, what kind of protocols are going to use on the internet? The first services is known as the web services. Okay, so जैसे कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं तो आप क्या करते हो, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपके पास अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास रिलायंस के कुछ प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, आपके पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो. तो वो क्या करेंगे, अपने अपने कंपनी जो है वो अपने अपने पर्टिकुलर वेबसाइट्स को डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट्स को बिल्डअप करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन वो क्या करेंगे वहाँ पे वो ऐड करते रहेंगे. ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा, आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ से आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को परचेस करोगे. तो वो जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे. वेब सर्विसेज में मेन तीन तरीके के एंटिटीज आती है. फर्स्ट एंटिटी होती है आपके एंड यूज़र, मतलब क्लाइंट. फर्स्ट एंटिटी जो होती है वो क्या होती है आपकी, एंड यूज़र होती है, मतलब क्लाइंट होती है. तो वो क्लाइंट क्या करेगा आपका, जैसे दिस इज योर क्लाइंट ए है, तो क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे ही इज गोइंग टू यूज अ ब्राउजर to access the web services. Okay, to access the web page on a particular company server. तो यहाँ पे देखो, this is the first entity which is going to use a browser. So we have different kind of browsers, like we have Mozilla, we have Firefox, we have Chrome, we have Microsoft Edge.
तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस क्लाइंट इज़ यूजिंग अ ब्राउज़र टू सेंड अ पैकेट. ओके. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस के बारे में, दिस आईपी एड्रेस हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टू ईच अदर. सो फॉर कनेक्टिंग perspective, अगर मुझे कनेक्ट करना है, लेट्स से दिस इज द क्लाइंट and there is your web server. This is the second entity. Okay, this is my company web server. If you want to connect client and the server to each other, you need to have the IP address. Okay, so connection करने के लिए, connection establish करने के लिए, you need to have the IP address. And if you want to communicate with each other, मैं चाहूँगा ये आपस में communication कर रहे हैं आपस में. So this communication which is done by the protocol which is known as the HTTP. So browser क्या करेगा? Browser he is trying to send a packet towards the web server by using a protocol name is HTTP. Okay, IP address जो है that is assigned by the both end users, client and the server. तो ये IP addresses किसके लिए यूज होंगे? For the connection perspective, and the for communication perspective they are using a protocol name which is called the HTTP. Okay. The second service is known as the mail service. अब यहाँ पे क्या है? जहाँ पे मैंने ब्राउज़र यूज़ किया, जहाँ पे मैंने वेब सर्वर को यूज़ किया है, वहाँ पे आपका क्या होगा? मेल सर्वर होगा. If you want to send a mail towards the mail server, तो आप क्या करोगे? For communication, for connection perspective, I am going to use the IP address and the both end. And for communication perspective, I am going to use a protocol name which is known as SMTP. So same communication process होगा. For communication perspective, I am going to use as IP address, and for connecting perspective, and for communication perspective, I am going to use a protocol name which is known as the SMTP. Okay. The third service which is known as the name services. अब कंसिडर करके चलते हैं. लेट्स से मुझे किसी सिटी पे जाना है, ठीक है. लेट्स से आई वांट टू गो टू अ सिटी. वैसे मैं यूएस में हूँ और मुझे लॉस एंजलिस में जाना है, ठीक है ना. करंटली आई एम इन यूएस है एंड आई वांट टू गो टू द लॉस एंजलिस. सो अगर मुझे लॉस एंजलिस पे जाना है, सो लॉस एंजलिस हैज़ अ जिप कोड दैट इज असाइंड फॉर लोकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना. सो लोकल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिप कोड जो है वो असाइन किए जाते हैं. जिप कोड इज नंबर. फॉर एग्जाम्पल, Los Angeles have a zip code range which is 90,000X. Okay. So अगर मुझे लॉस एंजलिस में कहीं जाना है तो मैं कभी ऐसे नहीं कहूँगा मुझे 90,001 में जाना है, या जैसे मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे 90,002 पे जाना है या 90,003 पे जाना है. ओके. एज अ ह्यूमन वी आर नॉट कंफर्टेबल विद अ नंबर, वी जस्ट अंडरस्टैंड द नेम्स. मतलब लॉस एंजलिस में मुझे अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना है तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे 9001 में जाना है या 9002 पे जाना है या 9003 पे जाना है. मैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहूँगा? लॉस एंजलिस में मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना है, जो स्टेशन का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे ABC है, XYZ, DF, whatever. तो लॉस एंजलिस में कहीं पे भी अगर मुझे घूमना है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ अ जिप कोड. लॉस एंजलिस में अगर मुझे कहीं पे भी घूमना है तो मैं जिप कोड को यूज़ नहीं करूँगा. एज अ ह्यूमन मुझे लॉस एंजलिस में अगर घूमना है तो मैं यहाँ पे सिटीज़ के नाम्स को यूज़ करूँगा. ओके. सो इफ़ आई वांट टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, लेट्स से मुझे किसी एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, उस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो है लेट्स से 8.8.8.8. अब देखो, एज अ 8.8.8.8 एज अ ह्यूमन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज 8.8.8.8. यू डोंट नो दैट. बट द मशीन, एज अ मशीन परस्पेक्टिव अगर आप देखोगे, मशीन को पता है हु इज 8.8.8. लेट्स से 8.8.8 इट्स google.com. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन जो है वो हमेशा नंबर्स के साथ फैमिलियर रहेगी. एज अ ह्यूमन आई जस्ट नो अबाउट द google.com. तो अगर मुझे google.com के पास जाना, आई एम गोइंग टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स google.com. आई डोंट नो हु इज 8.8.8.8. और एज अ मशीन परस्पेक्टिव देखोगे तो मशीन को कभी पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज google.com. ही जस्ट सेंडिंग द पैकेट टुवर्ड्स द आईपी एड्रेस विच इज 8.8.8.8. ओके. सो एवरी सर्वर हैज अ यूनिक आईपी एड्रेसेस एज वेल एज, देखो
यहाँ पे मैं दो चीज़ों के बारे में अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ। एवरी सर्वर, जैसे यहाँ पे गूगल सर्वर है, ठीक है, गूगल सर्वर हैव देयर ओन यूनिक आईपी एड्रेस, जैसे 8.8.8.8, and make sure have their own unique name. Okay, so that is name which is divided into two parts. नेम जो है वो डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में। एक होता है द होस्ट नेम एंड दूसरा होता है द कंपनी नेम। ओके, द होस्ट नेम जनरली हम यूज करेंगे जैसे www और http as a host name, and company name I am going to use a domain name. कंपनी नेम जो है मैं यूज करूंगा एज अ डोमेन नेम। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताता हूं, ओके, सो नेम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है होस्ट नेम, दूसरा होता है कंपनी नेम। तो होस्ट नेम में हम यूज कर सकते हैं एज अ www और आई एम गोइंग टू यूज http। कंपनी नेम में हम यूज करेंगे डोमेन नेम। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, सो इट लुक लाइक दिस www.google.com। सो इसमें से दिस वन इट्स अ डोमेन नेम एंड दिस वन इज कंसिडर एज अ होस्ट नेम। दिस फुल नेम इज नोन एज FQDN, fully qualified domain name, fully qualified domain name। Okay, so this whole name is known as fully qualified domain name। all right, now for example देखते हैं, कंसिडर करके चलो, this is my PC1 or you can call the PCA। PCA का IP एड्रेस जो है वो है जैसे 1.1.1.1। now he is going to use, he wants to access the google.com। तो वो क्या करेगा, ब्राउज़र पे जाएगा और ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे लिखेगा और यूज़ करेगा FQDN को, जो है www.google.com। अब एज अ ह्यूमन आपको पता है www.google.com क्या है, दिस इज अ वेब सर्वर, बट एज अ मशीन दे डोंट नो अबाउट दैट, दे डोंट नो व्हाट इज अ google.com, व्हाट इज www.google.com, उनको पता नहीं है। सो ही इज गोइंग टू सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सर्वर, towards a particular server। So this server is going to register this www.google.com is or have the IP address is 8.8.8.8। ओके, तो यहाँ पे जो आपका से वी हैव गूगल सर्वर ओवर हियर, गूगल का IP एड्रेस जो है वो है 8.8.8.8। मतलब जब कभी भी आपको गूगल सर्वर को एक्सेस करना है, google.com का एक्सेस करना है, सेंड द पैकेट टुवर्ड्स 8.8.8.8। अब इस पीसी को पता नहीं है गूगल सर्वर का IP एड्रेस क्या है, सो ही इज गोइंग टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सर्वर। दिस पर्टिकुलर सर्वर हैव अ रजिस्टर्ड एंट्री मैं कहूँगा, तो उसको पता है कि अगर आपको गूगल के पास जाना है, सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स 8.8.8.8, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा, आपके ब्राउज़र को। सो ब्राउज़र सेंड अ पैकेट, मेक अ पैकेट टुवर्ड डेस्टिनेशन IP एड्रेस ऑफ 8.8.8.8। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर को पता है कि हु इज़ google.com, और google.com जो है वो क्या है, उसका IP एड्रेस है 8.8.8.8। सो दिस सर्वर इज नोन एज द नेम सर्वर, दिस सर्वर इज नोन एज द नेम सर्वर। ओके, so this server is known as name server, have the ability to resolve the name to its corresponding IP address, have the ability to resolve a name into the corresponding IP address। So for communication connection perspective we are going to use IP address, and for communication perspective I am going to use a protocol name which is DNS। okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो, so connection is done by the IP address and the communication is done by the protocol is known as DNS। यहाँ पे मैं DNS को यूज कर रहा हूँ। ओके,
सो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ वेब सर्विसेज, व्हाट इज़ ईमेल एंड द व्हाट इज़ नेम सर्विसेज। अब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है इंटरनेट कनेक्शन का, ये एग्जांपल या टोपोलॉजी जो है मैं इससे पहले भी मैंने आपको बताई है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव वाईफाई सेटअप ओवर हियर, वी हैव वायर्ड एंड द वाईफाई दोनों का भी सेटअप है यहाँ पे। दिस इज योर कंपनी ए एंड दिस इज योर कंपनी बी, okay, and these companies, these end users are connected with a different kind of ISPs. Let's say ISP1, ISP2, 3, 4, 5 and the 6 कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पे PC1 जो है उसका IP एड्रेस है से 1.1.1.1 और यहाँ पे मेरे कंपनी B का वेब सर्वर है, इसका IP एड्रेस है से 2.2.2.2, उसका IP एड्रेस जो है वो है 2.2.2.2। अब क्या है, इस PC1 को आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना है, तो सोर्स एड्रेस क्या होगा, सोर्स IP एड्रेस होगा आपका 1.1.1.1। डेस्टिनेशन IP एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा यहाँ पे 2.2.2.2। सो वो क्या करेगा, इट सेंड्स अ पैकेट टुवर्ड्स माय कंपनी एज राउटर, कंपनी एज राउटर सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स द ISP। नाउ ऑन द ISPs on the internet they all are connected with each other, they all are connected with each other by using a IP address, and for communication with each other they are going to use a protocol. So for communication perspective ये सारे ISP जो है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे थ्रू द IP address, थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ISP1 माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे वो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि अगर मुझे 2.2.2 के पास जाना है, सेंड द पैकेट, क्योंकि ISP1 को अगर 2.2.2 के पास जाना है तो इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि ISP जितने भी ISPs इनको पता है कि 2.2.2 कहाँ पे है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ISP यहाँ पे देखेगा, ISP1 जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा, ही सेंड द पैकेट टुवर्ड्स ISP3, ISP3 सेंड द पैकेट टुवर्ड्स ISP4, ISP4 सेंड द पैकेट टुवर्ड्स ISP6, क्योंकि यहाँ पे हर एक राउटर जो है वो अपना अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज करता है, और एक जो कम्युनिकेशन जो है वो हम बाय प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। दिस ISP6 इज नोन एज, इसको पता है कि 2.2.2 कहाँ पे है, ये सेंड करेगा इस पैकेट को कंपनी बी के पास, और पैकेट जो है वो आपके वेब सर्वर तक ट्रैवल कर देगा। ओके, सो आई होप आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा PC1 से आपके वेब सर्वर तक किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश हो चला। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था DNS का, as a server if you want to access the internet, like if you want to access the web server, or let's say if you want to access the Facebook, Google, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे important है आपके IP एड्रेसेस, आपको पता होना चाहिए इन पर्टिकुलर सर्वर्स के IP एड्रेसेस क्या है। एज अ ह्यूमन आपको इन IP एड्रेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन से वेब सर्वर का कौन सा IP एड्रेस है। उससे बेटर है मैं उनके FQDN के साथ फैमिलियर होता हूँ, मतलब FQDN स्टैंड फॉर फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, मतलब आई नो व्हाट इज़ facebook.com, आई नो व्हाट इज़ google.com, बट मुझे उनके पर्टिकुलर IP एड्रेसेस पता नहीं है। सो एज अ ह्यूमन यू आर फैमिलियर विद द नेम, बट एज अ मशीन you are just familiar with your IP addresses. Okay, so for communication perspective that machines are going to use IP addresses, और इन IP addresses को resolve करने के लिए you need to have a name server, or you can call the DNS server. Okay, so जैसे मैंने आपको एक DNS सर्वर का भी एग्जाम्पल बताया किस तरीके से ये जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कि ये जो विद इन एन नेटवर्क जब DNS सर्वर होता है तो किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। आउटसाइड जब नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट आती है मेरे DNS सर्वर के लिए, तब किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट मी शो यू ओवर हियर। विद इन एन कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। सो एज अ ह्यूमन if you want to access Google server or Facebook on the internet, we do it based on the name, not the IP address. Let's say I have a company over here and I want to send a request to the ISP. So ISP को मैं क्या बोलूँगा, मुझे कंपनी चाहिए तो मैं ISP के पास जाऊँगा और ISP को बोलूँगा प्लीज़ गिव मी द FQDN एंड द रेंज ऑफ द IP addresses. तो ISP मुझे FQDN दे रहा है, सो द कंपनी नेम इज़ नेटवर्क होम, और नेटवर्क होम ने और ISP ने मुझे कुछ IP एड्रेसेस की रेंज दी है। रेंज जो है वो है 199.1.1.1 से लेके 199.1.1.10। दिस इज़ द रेंज ऑफ द IP एड्रेस। ओके,
अब मुझे कुछ सर्वर्स चाहिए थे, तो मैं सर्वर्स के लिए मैं सबसे पहले वेब सर्वर जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा। तो वेब सर्वर का FQDN जो है वो है www.nh.com। दिस इज़ माय वेब सर्वर, और वेब सर्वर का IP एड्रेस जो है वो है 199.1.1.8। ओके, अब देखो इसको रिजॉल्व करने के लिए आई नीड टू हैव DNS सर्वर। तो DNS सर्वर का यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ 199.1.1.7। ओके, सो यहाँ पे दिस इज ऑल डन विद द ISP। सो ISP जो है दिस इज योर ISP1, हियर इज माय कंपनी इज राउटर, और यहाँ पे मेरे वेब सर्वर है। वेब सर्वर का जैसे मैंने आपको बताया था IP एड्रेस जो है वो है 199.1.1.8। ये जो वेब सर्वर है वो क्या है आपका www.nh.com, इसका डोमेन नेम है, ठीक है। और आई हैव अ DNS सर्वर ओवर हियर, और DNS का IP एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन किया है 199.1.1.7, ठीक है। अब क्या है, लेट्स से देयर इज अ यूजर, ही इज ट्राइंग टू एक्सेसिंग माय वेब सर्वर विच इज www.nh.com। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो पैकेट जो है वो कंपनी नेटवर्क में अगर है तब का एग्जांपल है। सो विद इन एन सो दिस पैकेट इज सेंड टू द DNS सर्वर। ये पैकेट किसको जाएगा, आपके DNS सर्वर के पास, क्योंकि उसको पता नहीं है हु इज www.nh.com, इसको पता नहीं है कि ये nh.com क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ nh.com। सो फॉर अ रिजोल्यूशन परस्पेक्टिव ही सेंड द पैकेट टुवर्ड्स द DNS सर्वर। अब DNS सर्वर के पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस में वो क्या करेगा, स्टोर करेगा आई नो हु इज nh.com। if you want to send a package to the www.nh.com, send this packet towards send this packet towards 199.1.1.8। ओके, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा एंड सेंड दिस पैकेट बैक टू द एंड यूजर। फिर जाके वो क्या करेगा, पैकेट जनरेट करेगा, इसमें सोर्स IP एड्रेस रखेगा खुद का और डेस्टिनेशन एड्रेस रखेगा 199.1.1.8। अब विद इन एन कंपनी इट्स गुड, बट व्हाट इफ outside of the company there is ISP2 and here is a user, he's trying to accessing my web server from the another network, तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक जब विद इन एन नेटवर्क में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, विद इन एन कंपनी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो देयर इज अ DNS सर्वर फॉर इज रिजोल्यूशन परस्पेक्टिव। अब यहाँ पे ISP2 या फिर आपका जो यूजर है यहाँ पे, जैसे इसका IP एड्रेस हम रखते हैं 10.1.1.1, इसको पता नहीं है आपके DNS सर्वर के बारे में, और दिस ISP डोंट नो अबाउट वेयर इज योर DNS सर्वर। फॉर रिजोल्यूशन परस्पेक्टिव इसको आपके DNS सर्वर के बारे में पता नहीं है। सो आई एम गोइंग टू रजिस्टर, क्योंकि मुझे बाकी मैं चाहूँगा कि आउटसाइड ऑफ द कंपनी जो है वो यूज़र्स भी मेरे इस वेब सर्वर को एक्सेस करें, मैं चाहूँगा। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू रजिस्टर दिस DNS सर्वर टू द रूट DNS सर्वर। रूट DNS सर्वर जो है उसका IP एड्रेस हम यहाँ पे लेते हैं जैसे 100.1.1.1। अब रूट DNS सर्वर पे जाके मैं रजिस्ट्रेशन क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू रजिस्टर्ड दिस DNS which is my company www.nh.com, send a packet towards 199.1.1.7। ओके, तो यहाँ पे मैं रूट DNS सर्वर पे जाके I am going to make a registered entry which is if anyone wants to send a packet towards www.nh.com, send the packet towards 199.1.1.7। ओके, अब कंसिडर करके चलते हैं, there is a PC1, he is trying to accessing your company web browser। ओके, इसको आपके कंपनी के वेब ब्राउजर को एक्सेस करना है, तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, इसका जो ब्राउजर है he is going to making a request towards www.nh.com, राइट। अब
मेरे पास डीएनएस सर्वर नहीं है। ओके ये जो यूज़र है वो इंडिविजुअल यूज़र है, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सेसिंग दिस वेब सर्वर फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब वो क्या करेगा, उसके पास तो कोई अटैच डीएनएस सर्वर नहीं होगा, वो क्या करेगा, उसके खुद के आईएसपी का डीएनएस सर्वर यूज़ करेगा विच इज़ ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे आईएसपी का खुद का एक डीएनएस सर्वर है, ऐसे दिस इज योर ISP2 डीएनएस सर्वर, जिसका आईपी एड्रेस हम यहाँ पे लेते हैं ऐसे 200.1.1.1। सो यहाँ पे क्या होगा, when every time this PC1 wants to send a packet towards www.ns.com, he's going to send a packet towards where 200.1.1.1. He's going to making a request towards ISP send this packet towards his own ISP's DNS server. अब वो जैसे DNS सर्वर के पास जाएगा वो देखेगा you know about www.ns.com, ISP क्या, ISP2 का जो DNS सर्वर है वो रिप्लाई देगा कि मुझे पता नहीं है कि www.ns.com कौन है, बट आई नो जो मुझे एक सर्वर के बारे में पता है, वो सर्वर उस वेब सर्वर का, उस पर्टिकुलर वेब सर्वर का आईपी एड्रेस जो है वो हमें असाइन कर सकता है। सो ही इज गोइंग टू सेंड दिस रिक्वेस्ट टूवर्ड्स इट्स रूट डीएनएस सर्वर। तो रूट डीएनएस सर्वर के पास ये पैकेट जाएगा, रूट डीएनएस सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा अपने डेटाबेस में, वो देखेगा डेटाबेस में आई नो वेयर इज www.ns.com, इसका आईपी एड्रेस जो है वो 199.1.1.7 है। ऐसी रिक्वेस्ट वो किसको भेजेगा, आपके ISP2 को, ISP2 के डीएनएस सर्वर को। ISP2 का डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इज गोइंग टू सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स ISP1, ISP1 सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स राउटर 1, और राउटर क्या करेगा, आपके डीएनएस सर्वर को ये पैकेट फॉरवर्ड करेगा। अब जैसे ही इस रिक्वेस्ट ये जो पैकेट है डीएनएस आपके ओरिजिनल डीएनएस कंपनी के डीएनएस सर्वर के पास आएगी, ही इज गोइंग टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट वो किस तरीके से जाएगा, ये ट्रैवल करेगा आपके डीएनएस से राउटर, राउटर से ISP। सो ISP जो डीएनएस सर्वर है आपकी कंपनी का, वो देखेगा जब कभी भी आपको www.ns.com के पास जाना है, सेंड अ पैकेट टूवर्ड्स 199.1.1.8, ठीक है ना, send it back to the ISP's DNS server. ISP DNS server क्या करेगा, send it back to the ISP2 and ISP send it back to the customer. तो यहाँ पे जो PC1 है is going to make a packet, इसमें वो source IP address करेगा, ऐड करेगा क्या, source address ऐड करेगा 10.1.1.1 और destination address यहाँ पे क्या ऐड करेगा 199.1.1.8। अब ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये प्रोसेस विद इन एन सेकेंड में होती है। ओके विद इन एन सेकेंड, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द यूजर जितने भी हैं उनको पता नहीं होता कि आपके कंपनी का एक्चुअल डीएनएस सर्वर कहाँ पे या फिर एक्चुअल का डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस कहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डीएनएस सर्वर का रजिस्ट्रेशन अपने रूट डीएनएस सर्वर पे कर देता हूँ। रूट डीएनएस सर्वर पे क्या होगा, यहाँ पे मैं अपने FQDN को DNS सर्वर के साथ लिंक कर दूंगा और उनको बोलूंगा कि जब कभी भी आपको ns.com के पास जाना है, सेंड द पैकेट टुवर्ड्स माय DNS सर्वर, माय कंपनी DNS सर्वर। इसको पता है कि आपका ns.com कहाँ पे है। ओके फिर जब कभी भी आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क कोई भी रिक्वेस्ट आती है, हर बार क्या करेंगे, हर बार वो अपने ISPs के DNS को यूज़ करेंगे या फिर अपने खुद के कंपनी नेटवर्क में अगर DNS सर्वर होगा तो उसको यूज़ करेंगे। और उनके अगर DNS सर्वर्स पे या उनके DNS के डेटाबेस में अगर कोई भी रजिस्टर्ड एंट्री नहीं होती है तो वो क्या करेंगे, ये सेंड द पैकेट टुवर्ड्स रूट DNS सर्वर, सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स रूट DNS सर्वर। तो जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यही बताया था। सो यहाँ पे लेट्स से दिस इज योर PC1 इज ट्राइंग टू एक्सेसिंग माई DNS सर्वर विच इज़ सॉरी ही इज ट्राइंग टू एक्सेसिंग माई वेब सर्वर, जो यहाँ पे है वेब सर्वर जो है वो है www.ns.com। तो वो क्या करेगा, ही इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट, सेंड इट बैक टू द ISP। ISP क्या करेगा, ISP का जो DNS सर्वर है, जो ISP's DNS सर्वर इसको भेजेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 2 रूट DNSs है। फॉर बैकअप परस्पेक्टिव मैंने यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन 1 को यूज़ करूँगा और रूट DNS सर्वर को इस पैकेट को फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है www.ns.com कहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, अपने ISP के DNS को बोलूँगा कि आपको पता है आपको पता है ns.com कहाँ पे है। ISP के DNS के पास भी कोई डेटा नहीं है, तो वो क्या करेगा, रूट DNS के पास जाएगा, रूट DNS सर्वर के पास जाएगा। इसको पता है रूट DNS को कि वेयर इज ns.com। जब कभी भी आपको ns.com को पैकेट भेजना है, सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स 199.1.1.6, सेंड इट बैक टू द
ISP सर्वर। ISP सर्वर क्या करेगा, फिर आपके ISP को भेजेगा, फिर आपके कंपनी राउटर को, एंड बैक टू द DNS सर्वर। और DNS सर्वर क्या करेगा, एक्चुअल IP एड्रेस क्या है इसका 199.1.1.7, ऐसी इन्फॉर्मेशन वो आपके इंटरनेट ISP को भेजेगा और इंटरनेट ISP से आपके एंड यूजर के पास आ जाएगा। सो एंड यूजर का अगर IP एड्रेस यहाँ पे हम रखते हैं जैसे 1.1.1.1, ही इज गोइंग टू क्रिएट अ पैकेट। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इस एंड यूजर को कोई भी पैकेट फॉरवर्ड करना है टुवर्ड्स माय वेब सर्वर, ही इज गोइंग टू मेक अ पैकेट एज अ सोर्स IP एड्रेस विच इज 1.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज 199.1.1.7 एंड दिस इज द डेटा। ओके, सो आई होप आपको पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सो विद इन एन नेटवर्क अगर आपके पास DNS सर्वर है तो किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, जब आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क अगर कोई आपके कंपनी DNS सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तब क्या होता है, उसका मैंने आपको एग्जांपल भी था। स्टेप जो है वो उसी तरीके से, द यूजर आर ट्राइंग टू यूज accessing my web server which is www.ns.com. This user send a packet towards the DNS which is the DNS resolution request. अब जनरली इसके पास अगर DNS सर्वर आपके उसके कंपनी में नहीं है, विद इन अ नेटवर्क में नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपके ISP DNS सर्वर को यूज करेगा। ओके, विच इज़ अगेन 150.1.1.11 ISP DNS सर्वर का IP एड्रेस है। टू वॉट, टू फाइंड द IP एड्रेस फॉर www.ns.com। अब ISP1 जो है वो ISP का DNS सर्वर जो है उसको भी पता नहीं कि वेयर इज www.ns.com और व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ दिस वेब सर्वर। तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को भेजेगा आपके रूट DNS सर्वर के पास। अब रूट DNS सर्वर को पता है कि आपका ns.com कहाँ पे है, वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा टूवर्ड्स 199.1.1.6। 199.1.1.6 जो है वो क्या है, आपकी कंपनी का, मेन कंपनी का DNS सर्वर है। यहाँ पे वो पैकेट जाएगा आपकी मेन कंपनी के DNS सर्वर के पास, वो उसको रिजॉल्व करेगा एंड सेंड इट बैक टू द 199.1.1.6। फिर DNS सर्वर क्या करेगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से टेक प्लेस करता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर और फ्रॉम डिफरेंट ISPs। जैसे कि मैंने आपको अभी DNS सर्वर का एग्जांपल बताया था, उसी तरीके से आप HTTP, HTTPS, आपके SNMT, इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश्ड होता है। ओके, सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक आपको हर एक प्रोसेस जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सर्वर्स के बारे में, ओके, नेटवर्क सर्वर्स के बारे में। तब उसमें भी आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कौन से सर्वर जो है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑलराइट, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इन सभी सर्विसेज के बारे में, इन सभी सर्वर्स के बारे में। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।